Good morning everyone. I hope you all are fit and fine and you all have completed your holiday homework, your summer vacation homework and you all are taking care of your health. So in previous class student we have almost completed our topic, that is in chapter 3 community health and hygiene. So we have finished some topic and some topics are left that we are going to do in today's class. Okay. So we have left till other important healthcare and agencies. So we are going to continue from there. So we have doing chapter 3 lesson 3 and that is community health and hygiene. Okay. So let's read the chapter. Other important healthcare agencies. So there are other important healthcare agency that is work for our society. Okay. They are not part of the government but for the better care of the society they work. Okay. कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है बट वो भी क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं फॉर बेटरमेंट. ओके, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं. Besides this government bodies, there are many other private or non-private organization that we call NGOs. So apart from the government bodies, apart from the government communities, there are some other agencies which work for the society. Okay, they are not part of the government. Okay, they are non-government, that we call them NGOs. Okay, there are so many NGOs in India. They work for the betterment of the society. Okay, which provide healthcare facility and run many programs. They provide, the work of the NGOs is to provide education. They used to provide better healthcare facilities. They provide medicine and better healthcare in the village and the places where the government can't go by themselves. Okay, the agency helps in educating people about the importance of health, sanitization and hygiene. Okay, so they also aware people there that how education is important for them. वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सबको बताते हैं कि education हमारे लिए कितना important है. Also they told them about the hygiene, why we should keep our self neat and clean and our surrounding neat and clean. We should keep our area neat and clean. Okay, they also arrange free medical camps and healthcare center. They also arrange free healthcare camp. Okay, they also give free healthcare. Okay, and they also do healthcare centers, keep healthcare centers. Okay, organizing free immunization and vaccination camp and providing help during emergency and epidemics. Okay, जब भी हमारे इंडिया में एपिडेमिक आता है, बाढ़ आता है या फिर सुनामी आता है या फिर अर्थक्वेक आता है, सो कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, एनजीओ जाती है एंड उन लोगों की हेल्प करती है. ओके, दे प्रोवाइड वैक्सीनेशन, food, water, medicine, etc. Okay, to help them. Okay, next topic is primary health centers, primary health care centers. Okay, these primary health care centers provide medical care for the minor ailments. Okay, so there are some primary centers for the health, taking care of the health of the people in the villages or cities. Okay, they provide alignments like जैसे किसी को सर्दी बुखार है तो उसके लिए जो दवाई प्रोवाइड किया जाता है, they provide them. Okay, they spread awareness about the need of sanitization. They also told them how sanitization is important, why, how we should keep ourselves and our surrounding clean and neat, and a way to check the spread of communicable disease, or how to keep ourselves safe from the communicable disease. जब भी हमें सर्दी होता है तो हम किसी और के कम्युनिकेशन में आता है तो उसमें भी सर्दी हो जाती है. दैट आर कम्युनिकेबल डिजीज. अगर हमें खांसी है तो हम किसी के सामने भी खांसी करते, स्नीज करते, कफिंग करते तो उन्हें भी हो जाता है. दैट डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, जो इजीली एक दूसरे से दूसरे में फैलता है. ओके, दे प्रोवाइड
मैटरनियल एंड चाइल्डहुड केयर फैसिलिटीज टू द विलेजेस, और जो भी मदर प्रेग्नेंट होती है वो भी, उनको भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, उनको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर इज द इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन इन द विलेज. ओके, so the most important function of the primary health care is to impart health education to the villages. उन लोग को बताया जाता है, विलेजेस को बताया जाता है कि हाउ हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड दे ऑल्सो यूज टू गिव सम एजुकेशन अबाउट द हेल्थ. ओके, उनको अच्छी तरीके से अवेयर करवाया जाता है. ओके, अबाउट एवरीथिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल. सो एवरीवन वी नो व्हाट इज हॉस्पिटल. ओके, a hospital is the most important and the bigger healthcare agencies in a city. So hospital is very big, very wide. Okay, healthcare in the cities. Also we find big hospitals in metro cities like Mumbai, Delhi. Okay, a hospital has better facility and it is more equipment for the treatment of all the types. Okay, so in big hospitals they have all the equipments that needed for the treatment of a person. Okay, all the diseases, all the things treated there. Okay, all the type of diseases they used to treat there. Okay, it has many doctors, surgeons, nurses working round on the clock. Okay, so there are so many in hospital, there are so many doctors and the nurses and the surgeons. Surgeons are those people who operate people. Okay, जो सर्जन वो लोग होते हैं जो भी ऑपरेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड सर्जन्स. ओके, सो डॉक्टर, नर्सेस रहते हैं और सबका अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम रहता है काम करने का. ओके, बाकी के वो चेंज होते जाते हैं. जैसे हम लोग का होता है, जैसे हम लोग का फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड होता है, तो फर्स्ट पीरियड में दूसरी टीचर आती है, सेकंड पीरियड में दूसरी टीचर आती है. सो इन एज इट इज वहां पे भी ऐसा ही होता है. ओके, डॉक्टर्स एंड नर्सेस क्लॉकवाइज चेंज होते हैं. ओके, they also handle emergency cases like अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो इमरजेंसी केस हुआ, तो उस सिचुएशन में जल्दी से डॉक्टर प्रोवाइड किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. ओके, देयर आर मेनी रूम, टेस्ट, लेबोरेटरीज, ICU. So in hospital there are many room for different purpose. Okay, टेस्ट, लेबोरेटरीज, जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, तो उनके लिए टेस्ट लेबोरेटरीज होती है. ओके, ICUs, इंटेंसिव केयर यूनिट. ICUs इज इंटेंसिव केयर यूनिट. ICU में तब लिया जाता है जब इमरजेंसी केस होता है. एंड OTS, ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर में तब लेके जाते हैं पेशेंट को जब उनका ऑपरेशन होना होता है. In a government hospital, treatment is much cheaper than in a private hospital. So as compared to private hospital, government hospital is more cheaper than private hospital. Okay, so government hospital में क्या है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, कम पैसा लगता है. एंड इन प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पे कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है. ओके, next is mobile dispensaries. Okay, mobile dispensaries are provided in the place where regular healthcare service cannot be provided. So mobile dispensaries are the healthcare service which is provided. ऐसा होता है, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जा पाते, पूरा हॉस्पिटल हम उठा के नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे हम लोग ये मोबाइल डिस्पेंसरीज को भेजते हैं. इन दैट ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन दैट वैन और समथिंग दे यूज टू टेक. ओके, दे कैरी मेडिसिन एंड डॉक्टर टू रिमोट एरिया. वैसे एरिया जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी केस है, तो वहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरी को लिया जाता है. ओके, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड विजिट रिमोट. ओके, वो एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं. ओके, area where there are inadequate medical facility, there are the mobile vans which travel different places to provide healthcare service to the people.
और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं, जहाँ पे पेशेंट को जल्दी लाया नहीं जा सकता, वहाँ पे मोबाइल वैन्स का भी प्रोवाइड किया जाता है, मोबाइल वैन्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस प्लेस पे जाके उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिथ एंड सुपरस्टिशंस। ओके, सो मिथ एंड सुपरस्टिशंस मीन अंधविश्वास। ओके, अंधविश्वास, कुछ लोग हैं जो कि बहुत अंधविश्वास होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज पर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लोकल हेल्थ केयर एजेंसी इज डिसाइपल सुपरस्टिशियस बिलीफ रिगार्डिंग डिजीजेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको खांसी है या फिर उनको कोई डिजीज है या फिर उनको कुछ भी ऐसा डिजीज होता है जो टाइम लगता है, या फिर कैंसर या फिर कोई भी ऐसा डिजीज होता है जो जिसको ठीक होने में टाइम लगता है, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि इन्होंने कुछ अगले जन्म में कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से ये उनको हुआ है इस जन्म में। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, दीज ऑल थिंग्स आर फेक। ये सब अंधविश्वास की चीजें हैं जिसे हमें नहीं माननी चाहिए। माइट्स पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट। Okay, mites people in India, they are not educated, they don't know the importance of education. Okay, so वो लोग कुछ भी चीजों पे easily विश्वास कर लेते हैं। They have false idea about many diseases। जो अगर इंसान को कोई भी डिजीजेस हो गया, कोई भी मतलब उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ पाप किया है, इसकी सजा भगवान इसको दे रही है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस ऑल थिंग्स आर फेक। दे थिंक दैट डिजीज आर कॉज्ड बाय द इविल स्पिरिट और आर रिजल्ट ऑफ गॉड क्योर। ओके, ये लोग ये सोचते हैं कि इस पे कोई बुरा साया है, किसी आत्मा ने इस पे काबू कर लिया है, या फिर वो लोग सोचते हैं कि भगवान इसको सजा दे रहा है इसकी गलती का। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, some common superstition that is leprosy. Okay, people think that this disease is the result of sins committed by a person. So इनमें ऐसा लोग मानते हैं कि इस इंसान ने पक्का कोई गलत काम किया, सिंस में कुछ गलत काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जो इसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको ये हुआ है। But this is not true. This disease can be caused by taking proper medical treatment. सो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रॉपर इनटेक ऑफ मेडिकेशन लोगे, इनटेक ऑफ गुड फूड लोगे, तो इससे आप जल्दी बेटर हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब। ओके, नेक्स्ट इज मिसेस, दैट इज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड बिग पॉक्स यू हैव हर्ड अबाउट। सो वो इंसान को होता ही होता है, उनकी लाइफ टाइम में एक बार होता ही है। पीपल थिंक दिस डिजीज इज काउज्ड बाय द एंगर ऑफ गॉडनेस। जब भी हमें माता होती है, जब भी हमें मिसल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि माता रानी गुस्सा हो गई है, इसलिए इसको, माता रानी एंग्री हो गई है, बहुत गुस्से में है, इसलिए इसको चिकन पॉक्स हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। दे थिंक दैट इफ दे प्रे द गॉडेस शी विल क्योर देम। और वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम माता रानी को पूजा करेंगे, गॉडेस को पूजा करेंगे, तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। दिस ऑल थिंग्स आर फेक। दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी क्योर। ये सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जो हमारे बॉडी में होता है, वो एक्टिव हो जाता है, इसके कारण होता है। और दिस कैन बी क्योर, और इसे क्योर किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिकेट्स। द डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। So this disease is caused by the deficiency of vitamin D. जब हम हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कम हो जाता है, people may believe that this caused by evil spirit. और लोगों को ये लगता है कि इस पे किसी बुरे आत्मा का साया है, इसलिए ये हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो ये सब अनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करो और बिलीव करो, अच्छे काम पे अच्छा अपना पढ़ाई करो। ओके, अपनी हेल्थ की टेक केयर करो। दैट्स ऑल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, so student, we have completed our chapter. I hope you understood this chapter. Okay, so these are the topic we have completed in our today class, that is other important healthcare emergency.
Next is primary healthcare center. Third is hospital. Fourth one is mobile dispensaries. Fifth one is myths and superstitions. And next is common superstitions, that is leprosy, measles and kids. We have covered all the topics in today's class. I hope you get it what we have learned in today's class. Okay, and the question answer and the fill in the blanks and the rest of the chapter we will do in class. Okay, that's all for today's class. Have a nice day, student. Take care and bye bye. Be safe, be cool and be at home and take care of your studies.